Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am your course instructor Muhammad Kashif, and the course name is Software Requirement and Specification. Uh, Before I start my next lecture, I want to recap. And in previous lecture, we have covered the use cases, development use case models, and we discussed about different scenarios, types of scenarios, representation of scenarios, and how we can model our use cases in the form of UML diagrams. So this was the review, or you can say the recap that we have covered in previous lecture. And in that particular lecture, we discussed about use cases, how we can create that use cases. And we have seen that we drive use cases against each functionality, each functional requirement. And then definitely we have multiple ways to represent or to model our use cases. So we have actors, we have interactions with the system. Actors have interactions with the systems, and we need to implement those interactions in the form of interfaces, graphical user interface, or screens. Because user wants to enter the data, user wants to get the data, user wants to manipulate the data. So each and every functionality can be performed by a user, by an actor, and for those interactions we use use cases to represent graphically how an actor can build interaction with your system. So this can help you to model or to implement the system in a right direction. Right. So obviously we discussed the modeling techniques, how we can model, and we have seen that we have multiple relations like include and extend. And when we include features, or when we exclude the features in use case diagrams. In today's lecture, we are going to discuss the different templates that we can use for use case diagrams, and we will cover simple column template and multi-column templates, and definitely we will cover the use case development. So first of all, if we want to see, or if we want to check how we can represent our use cases, and so there are multiple templates. There are different templates for use case, but they often consist of a subset of the following items. Obviously use cases में बहुत सारे parameters, बहुत सारे factors इस्तेमाल हो सकते हैं जिनको हम use कर सकते हैं, या you can say कि हम जब यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं यूज़ केसेस के अंदर, वो हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं. आइडेंटिफायर्स बेसिकली एक यूनिक लेबल है जो कि किसी भी एक यूज़ केस को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और या उसका नाम हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है जो कि यूज़र टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्टर है, मैं कहता हूँ एक्सपर्ट एक्टर है. एक्सपर्ट एक नाम है जो कि आइडेंटिफायर है. ठीक है. अब वो कर क्या सकता है, वो जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ कि वो क्रिएट कर सकता है, वो लॉग इन कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है. तो ये उसका नाम है, नेमिंग कन्वेंशन है, जो कि वो सजेस्ट करेगा, जो कि बताएगा कि ये जो आइडेंटिफायर है ये फलां स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. जैसे कि ऑर्डर बुकिंग हो सकती है, प्लेस ऑर्डर हो सकता है, कैश विड्रॉल हो सकता है, कैश डिपॉजिट हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है. ठीक है. प्रोडक्ट्स को निकाला जा सकता है. तो ये डिफरेंट तरह की नेमिंग कन्वेंशंस हम इस्तेमाल करते हैं यूज केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हर यूज केस के अगेंस्ट उनकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड ऑब्वियसली वी हैव ऑथर्स, पीपल हु डिस्कवर्ड यूज केसेस. ये भी एक हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, या यू कैन से कंपोनेंट है जो कि यूज केसेस को ड्राइव करता है. और गोल क्या है कि हमारे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारी एक्टर की आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो कोई यूज़र खास वो टास्क परफॉर्म कर रहा है कि प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है, और कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है.
क्या स्पेसिफिक टास्क वो क्रिएशन के मीनिंग में ले रहा है। इसी तरीके से अगर वो कुछ अपडेट कर रहा है तो अपडेट क्या कर रहा है, कमेंट अपडेट कर रहा है, प्रोफाइल अपडेट कर रहा है, या वो अपनी जो पेमेंट है वो अपडेट कर रहा है। मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम अपडेशन को ले सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। ऑब्वियसली अगर यूज़ केसेस बन रहे हैं किसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड भी कर सकती है कि जब तक हम कोई फलां रिक्वायरमेंट या फलां फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपको किसी ख़ास फ्रेंड की जो टाइमलाइन है या उसकी यू कैन से होम स्क्रीन पे कुछ लिखना है, तो फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद फिर आपको वो यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड वेयर यू कैन एंटर द डेटा। तो हर काम करने की कोई ना कोई प्री कंडीशन हो सकती है जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉगिन करना है तो रजिस्ट्रेशन प्री कंडीशन है। रजिस्ट्रेशन करनी है तो यू मस्ट लॉग इन टू द सिस्टम। आई मीन यू मस्ट हैव a URL of that particular domain or website where you want to explore the system। ठीक है, तो हर काम को करने की कोई ना कोई प्री कंडीशन है। अगर सिस्टम को यूज़ करना है तो सिस्टम की प्री कंडीशन क्या है कि फर्स्ट यू नीड टू प्रेस द स्टार्ट बटन, देन यू कैन एक्सप्लोर योर सिस्टम, और यू कैन मूव टूवर्ड्स योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे इनफैक्ट हर काम को करने के लिए, हर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए यू हैव प्री कंडीशंस। और पोस्ट कंडीशंस क्या है कि वो स्टेट है सिस्टम की जो कि आप यूज़ केस को कंप्लीट करने के बाद परफॉर्म करते हो, और मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, बिना ये जाने कि आपके पास आउटकम क्या आएगी। आउटकम मीन्स के आप के जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी फेवर में भी हो सकते हैं और आपकी फेवर में नहीं भी हो सकते। फेवर में होने का मतलब ये है कि अगर जो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते थे, जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते थे, वो एज इट इज़ अगर हो गई है तो मीन सक्सेसफुली हो गया। बट वो एक स्टेट है, वो एक आउटपुट है जो कि आपको नज़र आई है, जो और वो आउटपुट सिस्टम ने आपको जनरेट करके दी है। और वो सिस्टम किसने बिल्ड किया हुआ है? डिज़ाइनर्स ने, डेवलपर्स ने। और वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को उसने इम्प्लीमेंट किया जो कि उसने क्लाइंट से गैदर की, जिस तरह से गैदर की, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट थी। देन वी हैव टेम्पलेट्स के अंदर वी हैव प्राइमरी एक्टर्स जो कि इनिशिएट करते हैं यूज़ केसेस को। फिर हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, सेकेंडरी एक्टर्स, जो कि अदर एक्टर्स होते हैं जो यूज़ केस में इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोवाइड सर्विसेज कर रहे होते हैं और वो सिस्टम से अगेन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर कोई जैसे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई टेबल बुक करवाने आता है, कोई रूम बुक करने आता है, तो वहाँ पे बुक करने वाला एक कस्टमर है, बुक करवाने वाला एक कस्टमर है और करने वाला आगे से कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकता है। ठीक है, फिर अगर लेट से उसने रूम बुक कर लिया तो डेफिनेटली वो वहाँ पे खाना भी खाएगा, वो डिफरेंट तरह की सर्विसेज भी अवेल करेगा। तो वहाँ पे ऑर्डर टेकिंग भी हो रही है खाने की, फिर वहाँ पे फिर अगेन ऑब्वियसली एक चेन चलती जाएगी जिससे मजीद फर्दर और जो एक्टर्स हैं वो निकलते आएंगे और जिससे सिस्टम की फंक्शनैलिटी भी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। फिर उसमें हमारे पास रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिसमें आइडेंटिफायर्स ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और वो लिंक होते हैं यूज़ केसेस के साथ। सही है ना। अब लेट से अगर मैं कोई पेमेंट करना चाह रहा हूँ, कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो ये मेरी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और पेमेंट का होना भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस पेमेंट को सिक्योर बनाना एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन चूंकि मैं कर रहा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वो पेमेंट सिक्योर वे में हो, मुझे गारंटी हो इस चीज़ की कि मेरा वो जो कार्ड है, मेरा जो नंबर है या जो मेरी पेमेंट है वो सही अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी और कोई इंट्रूडर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई है। और फिर क्या हो गया आपका, दिस इज अनदर आइडेंटिफायर जो कि आई नीड टू यू नो find out which type of actor would be involved, and that would be your banks, that would be your companies who deal with credit cards or debit cards. Obviously those are banks,
एंड ऑब्वियसली वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, और वो इवेंट्स आपको पता है कि सिनेरियोज ही होते हैं, वो सिचुएशंस होती हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं, और ये लास्ट टाइम भी बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ था। अब जब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डिस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए। हमारे पास नैरेटिव होता है, हमारे पास सिंपल कॉलम मेथड है, और हमारे पास मल्टीपल कॉलम मेथड्स हैं। अब ये क्या है, तो अगर सबसे पहले हम देखें यूज केस टेम्पलेट जिसमें नैरेटिव फॉर्म है, तो इसमें हम पैराग्राफ focusing on the primary scenario and some secondary ones, very useful when the stakeholder first meet। तो असल में अगर हम एक फर्स्ट ड्राफ्ट जब बनाते हैं व्हेन वी मीट विद द क्लाइंट, व्हेन वी मीट विद द स्टेक होल्डर, तो ऑब्वियसली वी हैव अ रफ ड्राफ्ट जो कि हमारी उस कॉन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि हम फास्ट तरीके से लिख रहे होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को, एंड देन हम उसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि यूज़र इंसर्ट अ कार्ड इन द कार्ड रीडर स्लॉट, द सिस्टम आस्क्स फॉर अ personal identification number PIN pin, the user enters a pin after checking that the user identification is valid, the system asks the user to choose an operation। तो ये एक नैरेटिव फॉर्म है जो कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमने एक सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि यूज़र के पास एक कार्ड है और वो कार्ड रीडर में कार्ड डालेगा और आगे से मशीन उसको ये कहेगी कि पिन एंटर करो। पिन जब एंटर हो जाएगी तो वो कार्ड को वेरीफाई करेगी और बताएगी कि जी कार्ड आपका वेरीफाइड है और वैलिड है, और नाउ यू कैन परफॉर्म फर्दर मोर ऑपरेशंस। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है पैराग्राफ की फॉर्म में। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल कॉलम की फॉर्म में लेकर आए जो कि एक लीनियर सीक्वेंसेस बनाता है, यानी कि पीछे तो पैराग्राफ था, पैराग्राफ में हमें ऑर्डर नहीं मालूम था कि ऑर्डर मतलब आई मीन पहले क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और बाद में क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, सिस्टम कैसे काम करेगा। बट अगर हम इस सिंपल कॉलम के साथ इसको रिलेट करें तो आप ये देख सकते हो कि हमने लीनियर सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक पहले कर लो फिर उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि डिपेंडेंट ऑपरेशंस कौन से हैं। तो जैसे आप ये देखो कि सबसे पहले यूजर इंसर्ट अ कार्ड इन द कार्ड रीडर स्लॉट, ये पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, सिस्टम आस्क फॉर अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन। अब ये देखें ना, मैं नंबरिंग कर दी है सिंपल कॉलम की फॉर्म में, बता दिया कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है कि पिन मांगनी चाहिए, और फिर तीसरा स्टेप ये है कि यूज़र पिन एंटर करे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, सिस्टम चेक्स दैट द यूज़र आइडेंटिफिकेशन इज वैलिड, और पांचवा क्या है, द सिस्टम आस्क द यूजर टू चूज एन ऑपरेशन। अब ये जो मैंने कैटेगराइज कर दिया सिंपल, थोड़ा सा आसान कर दिया आपने पिछली वाली स्लाइड को, कि वहाँ पे क्या था, सिंपल हमारे पास पैराग्राफ था, उसमें कोई सीक्वेंस शायद अंडरस्टैंड ना हो पाए सही तरीके से, बट व्हेन आई लेबल माय ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स और नंबर्स, तो इससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई कि व्हाट शुड आई डू, how I can follow the order of my operations or of my the feature that I'm going to perform with the system। तो फिर अगला क्या होना चाहिए, पहला जो पहला पॉइंट है, अगर यूजर कार्ड इंसर्ट कर रहा है तो उसी का फर्दर नोटिफिकेशन क्या आना चाहिए, कार्ड इज नॉट वैलिड। अगर तो वैलिड है तो फिर पिन मांगेगा, अगर वैलिड नहीं है तो फिर तो स्क्रीन उसको आगे लेकर ही नहीं जाएगी। ये आप अक्सर चेक करते भी हो, जब आप लेट से कोई एक्सपायर कार्ड आपने एटीएम कार्ड आपने मशीन में डाल दिया तो मशीन आपको वो कार्ड फौरन से बाहर निकाल देगी कि जी ये वैलिड नहीं है। या जब आप कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, जब आप ट्रैवल करते हो अब्रॉड, तो वहाँ पे पासपोर्ट चेकिंग होती है और वो मशीन के जरिए चेकिंग करते हैं। अगर आपका कार्ड जो है वो जारी होता है, वो कार्ड काफ़ी आज के साथ और उसको डिस्कार्ड कर देता है, या यू कैन से उसको बाहर निकाल देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाए ही ना जब कार्ड ही आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एनआईसी नंबर, एनआईसी कार्ड है, अगर वो एक्सपायर हो गया हुआ है और आप उसे कहीं यूज कर रहे हो, तो बजाय इसके कि सिस्टम की फर्दर स्टेप्स में ले जाने के, वो जैसे ही आप नंबर एंटर करो आपको वैसे ही फौरन मैसेज आ जाए कि जी योर कार्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। अगर एक्सपायर है तो आप इवन पिन तक वो जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट ए लिखा हुआ है, यानी कि मतलब ये है कि 1 पॉइंट का आगे फर्दर सब पॉइंट है, सब मॉड्यूल है। अब ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये भी अब ये सिस्टम परफॉर्म करेगा। था तो वो यूज केस पहले
कि यूजर है जो कि कार्ड इंसर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक और पोस्ट कंडीशन जो है वो जुड़ी हुई थी, जो कि ये थी कि वो मैसेज शो करे अगर कार्ड वैलिड नहीं है। तो आगे क्या है 1.a.a, द सिस्टम रिजेक्ट्स द कार्ड। ऑब्वियसली अगर कार्ड ही वैलिड नहीं है तो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा ना कार्ड। So this is, the another way to represent our use cases or functional requirements. अब 4.a क्या कहता है कि यूजर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। अब अगर लेट से जाहिर है कार्ड अगर वैलिड नहीं था तो उसने रिजेक्ट किया, अगर वैलिड था तो पिन पे आप गए हो ना, पिन एंटर की आपने, पिन एंटर करने के बाद अगर आपने पिन गलत एंटर कर दी है तो क्या होगा, तो भी आपको एक एरर मैसेज आना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी अगर आके कोई भी पिन लगा देगा और आपका कार्ड जो है वो एटीएम मशीन या जो भी वो डोमेन है या जो भी वो सिस्टम है जिसका भी वो कार्ड है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर पिन आपने गलत एंटर किया तो ऑब्वियसली उसको मैसेज क्या देना चाहिए, उसको मैसेज ये देना चाहिए कि पिन यूजर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। फिर 4.a.1 क्या है, सिस्टम रिजेक्ट्स द कार्ड। इस बेसिस पे भी सिस्टम जो है वो कार्ड जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये सिंपल क्या है, अब आप यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशन क्या हो सकती है, कार्ड वैलिड और इनवैलिड की, के कार्ड जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। कार्ड इंसर्ट किए बगैर कैसे सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा कि वो वैलिड है या नहीं है। अब कार्ड अगर एक्सेप्ट हो गया है तो जब तक पिन एंटर नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो जैसे 1 है और 4 है, ये प्री कंडीशंस हैं किसकी, 1.a, 1.a.1, 4.a और 4.a.1। Another way to represent or another template where we can represent our use cases कि जिसमें हम वन कॉलम पर एक्टर इस्तेमाल करते हैं और ये अलाउ करता है फॉर मोर डिटेल्ड व्यू। अब अगर सपोज लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि यूजर एक्शंस हैं। यूजर एक्शन में क्या है कि वही इंसर्ट अ कार्ड इन द कार्ड रीडर स्लॉट, कार्ड इज नॉट वैलिड, सी ऑल्टरनेटिव 1.1। ठीक है, अगर कार्ड वैलिड नहीं है तो आप कोई और ऑप्शन देखो, राइट। और अगर वैलिड है तो फिर क्या करे, एंटर करे पिन। अब सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या है कि आस्क फॉर अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कार्ड जो है वो वैलिड है तो फिर वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा। और 3 के बाद सेकंड के बाद थर्ड परफॉर्म होगा, थर्ड के बाद आप चौथा परफॉर्म करोगे, check that the user identification is valid, identification is not valid, see alternative 4.1। अब वो डेफिनेटली कोई और वे होगा जो कि आपने सोचा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और एप्लीकेशन के सिवियरिटी क्या है। अगर तो ऑब्वियसली कैश का मामला है तो फिर तो आप अलाउ नहीं करोगे। अगर कोई और कहीं और आप चेक करना चाह रहे हो कार्ड को या किसी और एप्लीकेशन एरिया में बैठे हो तो जहाँ पे आप एक से या दो से तीन बार उसको चेक करवा के देख सकते हो कि जी देखें ये वाकई रिजेक्ट है, ये सही नहीं है। जैसे आप मोबाइल के अंदर अगर पिन जो है वो 5 टाइम्स रॉन्ग एंटर कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना वहाँ पे 1 टाइम गलत करने पे आपको दोबारा 30 सेकेंड्स या 1 मिनट वेट करवाता है। जबकि एटीएम मशीन एक सिवियर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा रॉन्ग एक्शंस परफॉर्म करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और इट वेरीज फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि आप कितनी बार रॉन्ग इनपुट्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हो सिस्टम के लिए। ऑब्वियसली वो सब के सब फिर आपके पास यूज केसेस के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे जितनी बार भी आप उसको अल्टरनेटिव वेज जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आप ईमेल के ऊपर अगर आप ईमेल आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप कितने मल्टीपल वेज होते हैं टू यू नो टू गेट बैक दैट पासवर्ड। तो अगेन डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। देन हमारे पास जो है यूज़ केस टेम्पलेट्स में एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम नेम सजेस्ट करते हैं कि, और वो बहुत ही शॉर्ट नेम होता है और कोशिश भी हम यही करते हैं कि हमारे पास जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी हमारे पास यू कैन से द फंक्शनैलिटीज़ हैं, हम छोटे से छोटा वर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड इस्तेमाल करें जो कि हमारे फंक्शनैलिटी को और यूज़ एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फिर बी एक्टर है लिस्ट द एक्टर हु कैन परफॉर्म दिस यूज केस। अब लिस्ट का मतलब क्या है कि एक सेम फंक्शनैलिटी मल्टीपल एक्टर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर
हम फेसबुक के ऊपर कोई भी प्रोफाइल कोई भी पोस्ट अपडेट करते हैं, तो वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा, हज़ारों यूज़र और भी कर रहे हैं, एडमिन भी कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे एचआर वाले भी बैठे होंगे, वो भी कर रहा होगा, अकाउंटेंट भी होगा, वो भी कर रहा होगा। तो डिफरेंट रोल हैं एक्टर्स के जो कि सेम काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेप्लिकेट हो सकती हैं, वो मल्टीपल एक्टर्स सेम तरह का काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ दोज एक्टर विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शनैलिटी। देन सी हमारे पास गोल्स हैं, एक्सप्लेन व्हाट द एक्टर्स आर ट्राइंग टू अचीव, कि हमारा वो जो एक्टर है अगर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है तो उससे वो अचीव क्या कर रहा है। फिर ऑब्वियसली वी हैव प्रीकंडीशंस, वी हैव डिस्क्रिप्शन, वी हैव ट्रिगर्स। ट्रिगर मींस डिस्क्राइब द इवेंट दैट इनिशिएट्स द एक्टिविटी, कि आपको कोई भी अगर काम परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ केस लिख रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और फंक्शनैलिटी विल बी ट्रिगर्ड बाय क्लिकिंग ऑन समथिंग और बाय डूइंग समथिंग एल्स। तो देन फिर समरी प्रोवाइड करते हैं हम कि क्या एग्जिस्ट करता है, व्हाट अकर्स एज द एक्टर परफॉर्म द यूज केसेस, एंड देन वी हैव रिलेटेड यूज केसेस जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी और आज भी हमने बात की कि एक ही यूज केस मल्टीपल और दूसरे यूज केसेस के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, मल्टीपल और यूज केसेस एक ही यूज केस से ड्राइव हो सकते हैं। फिर वी हैव स्टेप्स, एंड स्टेप्स मीन्स सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स की फॉर्म में हो सकते हैं। वी हैव पोस्ट कंडीशंस, वी हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड उनसे रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब हमारे पास कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर हम सिस्टम को अपने रिफाइन करते हैं। फिर अगर हम बात करें यूज़ केस डेवलपमेंट के अंदर, तो हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें हम यूज़ केसेस को फाइंड करते हैं। तो इसमें सेलेक्ट नैरो वर्टिकल स्लाइस ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम कोई एक ख़ास सिनेरियो पकड़ते हैं जिसके ऊपर हम उसकी डिटेल पे काम करते हैं कि उस ख़ास फंक्शनैलिटी के ऊपर यूज़ केस किस तरीके से परफॉर्म करेगा, यूज़र किस तरीके से उस ख़ास सिचुएशन में इंटरेक्ट करेगा, उसको आउटपुट में क्या मिलेगा। और देन वी हैव हॉरिजॉन्टल स्लाइड, वर्टिकल स्लाइस है और एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस है। हॉरिजॉन्टल में हम मल्टीपल सिनेरियोज जो हैं वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव इलस्ट्रेट प्रोटोटाइप्स जिसमें मॉकअप्स होते हैं और जो कि विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीक के जो हमारा कंटेंट था वो प्रोटोटाइप्स के ऊपर ही था कि किस तरीके से हम अपनी उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रोटोटाइप्स। देन ऑब्वियसली वी हैव ऑल्टरनेटिव वेज टू आइडेंटिफाई यूज केसेस। तो हम एक्सटर्नल इवेंट्स देखते हैं जिसमें हमारा एक्सटर्नल इवेंट्स का मतलब ये है कि एक तो हमारा इंटरनल यूज़र है या इंटरनल सिस्टम है जो कि ख़ास फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है, यानी कि एक ऐसा यूज़र जो कि अननोन है, नॉन फेमिलियर है विद द सिस्टम, वो किसी भी तरीके से सही तरीके से गलत तरीके से सिस्टम में इनपुट कर सकता है। तो उसके ऊपर आपका सिस्टम या वो फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म करेगी। तो दैट मीन्स यू शुड टेस्ट योर सिस्टम on each and every with each and every aspect. Express business process in terms of specific scenarios, जिसमें फिर हम जनरलाइज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ईआरपी जो सिस्टम्स आप देखते हो, ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम्स हैं, वो जनरलाइज्ड एप्लीकेशन हैं जो कि तकरीबन हर तरह की एप्लीकेशन, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए उनको फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जस्ट विद लिटिल बिट चेंज और नेमिंग कन्वेंशन हम उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड देन हमारे पास अक्सर हम क्या करते हैं कि यूज़ केसेस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम एक सेंट्रल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हमारा सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, हम उन से रिलेटेड एक्टर्स और उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और बाकी जब कोर एक्टर्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स निकल आती हैं तो बाकी उनसे जुड़े हुए एक्टर्स और
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मज़ीद फिर ड्राइव होना शुरू हो जाती हैं। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क हाई होता है, बिकॉज अगर सिर्फ और सिर्फ हम कोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी ऐसी नॉन फंक्शनल और लो फिdelity रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी मिस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। अगर हम यूज़ केस डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे अब आप एग्जांपल ले सकते हो एटीएम मशीन्स की। अगर हम इसमें कैंडिडेट्स को डिटरमिन करें सिस्टम स्कोप और बाउंड्रीज के लिए, तो ऑब्वियसली वी हैव स्टेक होल्डर्स जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें क्रिएट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें इंटरव्यूज एंड अदर टेक्निक्स होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएम प्लस बैंक दोनों की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें जो कि कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है। फिर एटीएम्स जो है वो कस्टमर टू भी इस्तेमाल कर रहा है और बैंक खुद भी इस्तेमाल कर रहा है। फिर एटीएम सॉफ्टवेयर है जो कि कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, कार्ड कैश डिस्पैच कर रहा है, वो कीपैड उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, टच स्क्रीन उसमें प्रोवाइड की जा रही है, प्रिंटर है, बैंक है। तो ये तीनों डिफरेंट जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि कस्टमर ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कहीं पे बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पे एटीएम मशीन इन्वॉल्व हो रही है और एटीएम मशीन में चलने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टेक होल्डर एक ही है कि एक कस्टमर है लेफ्ट साइड पे और दूसरा स्टेक होल्डर हमारे पास कस्टमर और बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंक है तो बैंक में भी तो बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं जो कि एटीएम मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल आम यूज़र इस्तेमाल करता, तो दैट कुड बी अ स्टेक होल्डर। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें एक्टर्स को, हु इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, हु और व्हाट यूजेस द सिस्टम, फॉर व्हाट गोल्स, व्हाट रोल्स डू दे प्ले, who installs the system, who or what starts the shuts down the system, who maintain the system, who or what gets and provides information to the system, does anything happen at a fixed time। ये तमाम जो W's आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको हेल्प आउट करते हैं टू आइडेंटिफाई योर एक्टर। तो आप यहाँ देखो कि ये एटीएम मशीन से ही रिलेटेड तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं कि कैश इंसर्ट करने वाला, कैश डिपॉजिट करने वाला, डिस्पैच करने वाला और सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला, सिस्टम को स्टार्ट करने वाला, सिस्टम को मेंटेन करने वाला, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टर्स हैं। राइट, तो राइट साइड पे आप देख सकते हो कि आपको अलग एक कॉलम नजर आ रहा है जो कि बैंक कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर, बैंक, वीकली रिपोर्ट्स। अब ये तमाम देखो बैंक कस्टमर स्टेक होल्डर है। बेस्ड ऑन लेफ्ट साइड डिस्क्रिप्शन वी आर आइडेंटिफाइंग आर स्टेक होल्डर्स। तो बैंक का कस्टमर स्टेक होल्डर है, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन स्टेक होल्डर है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या है हमारे पास स्टेक होल्डर है, और फिर जो उनमें से वीकली रिपोर्ट्स निकल रही हैं वो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ अनदर एग्जांपल जो कि एटीएम सिस्टम से ही रिलेटेड है, जिसमें हम अगेन एक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चूज एक्टर्स नेम्स केयरफुली। ठीक है, सबसे पहले हमने सोचना ही होता है जब हम यूज़ केस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हमने जो एक्टर का नाम है वो बहुत ही अच्छे से और केयरफुली चूज़ करना होता है, जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। पुअर एक्टर नेम देख लें आप, उसकी एग्जांपल क्लर्क, थर्ड लेवल सुपरवाइजर, डेटा एंट्री क्लर्क, एडी द डॉग टेलर, मतलब ये एग्जांपल्स हैं पुअर एक्टर नेम्स की। और राइट साइड पे एग्जांपल्स हैं गुड एक्टर नेम्स की, कि पेंशन क्लर्क, एक क्लर्क है जो कि पेंशन्स को डील कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो क्लर्क है वो तो हमें आइडेंटिफाई पता ही नहीं चल रहा कि उसका उसका जॉब क्या है, उसका वो किस लेवल का क्लर्क है। फिर अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर की, तो कौन सा सुपरवाइजर है, थर्ड लेवल सुपरवाइजर। ठीक है, लेकिन हम जब राइट साइड पे देखते हैं तो हम उसका साथ में डेजिग्नेशन प्रॉपर मेंशन करें कि सेल सुपरवाइजर है। लेफ्ट साइड पे अगर हम डेटा एंट्री क्लर्क की बात करते हैं तो हैशटैग 165 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट अकाउंटेंट है शायद, जो कि प्रोडक्ट्स की बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है कि व्हाट वाज द सेल ऑफ द डे और द सेल ऑफ मंथ, तो वो प्रोडक्ट अकाउंटेंट है। फिर अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करते हैं तो हमने एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की है नाम के साथ कि एडी द डॉग टेलर है, लेकिन बेसिकली कस्टमर है जो कि सर्विस रिप्रेजेंटेटिव
के तौर पे जॉब कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह के आपके जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं एक्टर्स की होनी चाहिए जो कि उसके रोल को रिप्रेजेंट करे। जब आप रोल को रिप्रेजेंट अच्छा करोगे ना तो आप उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट इनफैक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो जब आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने रोल को ही एम्बिगुअस रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि यूजर स्टूडेंट टाइप का है, टीचर टाइप का है, या वो क्लर्क है, या कोई वो एचआर मैनेजर है, या वो कोई स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर है, तो ये रोल प्रॉपर आप एक्टर्स को फिर क्या करते हो, असाइन करते हो, जिससे उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मजीद क्लियर हो जाती हैं। सेम इफ वी टॉक अबाउट द गोल्स, तो गोल्स क्या है कि ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड दैट वी ट्राई टू फेच द डेटा, वी ट्राई टू स्टोर द डेटा। तो गोल क्या है हमारे पास कस्टमर का, कि एक्सेस अकाउंट करना चाह रहा है 24/7 फॉर रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशंस, विड्रॉ करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है स्टेटमेंट्स इन टाइमली एंड सिक्योर वे। To be refined into sub goals, from goals we can identify tasks, withdraw cash, make deposit, print account statement। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये तमाम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस हैं राइट साइड पे। कस्टमर अपने है उसके गोल्स क्या हैं, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर वो बैंक में आ रहा है तो जाहिर है कि बैंक में वो कोई वॉक करने तो नहीं आया, वो कोई ग्रॉसरी करने तो नहीं आया, वो डेफिनेटली वहां पे कैश या तो डिपॉजिट करेगा, या कैश विड्रॉ करेगा, या स्टेटमेंट निकलवाएगा, या वो अपनी कोई पॉलिसी लेगा, कोई कार फाइनेंस करेगा, कोई होम लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो इस तरह की जो टास्क हैं वो बैंक से रिलेटेड तमाम के तमाम जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपको चूज करना पड़ेंगी। अगर आप ऐसे नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करोगे जो कि शायद ग्रॉसरी या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते होंगे, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, और उसमें हमने देखा ही है कि वी हैव यूज केसेस, और उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। सिंपल टेम्पलेट है, कॉलम वाइज टेम्पलेट है, और उसमें हमने डिस्कस ही किया है कि हम किस तरीके से यूज़ केसेस को बेहतर बना सकते हैं बाय चूजिंग और बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट नेमिंग कन्वेंशंस, और उन यूज़ केसेस को फिर हम फर्दर नए यूज़ केसेस को ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो if you people have any question you can ask to me। और आपके जो इसी लेक्चर से रिलेटेड आपका अगला जो टास्क होगा, आई विल शेयर और आई विल अपलोड इन अ गूगल क्लास इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूज केसेस, ठीक है। एंड यूज केसेस को आपने रिप्रेजेंट करना है, उनको आपने मॉडल भी करना होगा। आप ई ड्रॉ या रैशनल रोज इस्तेमाल कर सकते हो टू मॉडल योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ यूज केसेस। और करना यही है कि आपने सबसे पहले यूज केसेस जो है वो बनाने होंगे, और उसके लिए आपको पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। फिर आप यूज केसेस के लिए आप कोई टूल इस्तेमाल करोगे, और टूल जो है वो मैंने बता दिया। आप रैशनल रोज इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ई ड्रॉ इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और इसमें आपने अपने उन यूज़ केसेस को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। और गूगल क्लास में मैं ये असाइनमेंट आपकी पोस्ट करूँगा, और वहीं पे आपने इसकी सबमिशन जो है वो करनी होगी। थैंक यू। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो तो आप यू कैन आस्क टू मी।